Hello my dear students, welcome back to the physics class. Today in class 10, the continuation of the concepts of physics, we will study how we can form the images through the different position when object is kept in front of concave mirror. In beginning I have told you I will use the mixed language so you can understand the concept very well. Because language should not be barred to understand any concept. Now, पहली बात आती है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे और उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. पहली बात सब लोग अपने दिमाग में ये रख लीजिए. नो नीड टू लर्न इट. इफ़ यू हैव अ कंपास स्केल and a pencil or pen, you can find out all those position by yourself. Just like अब हम पढ़ेंगे कैसे डिफरेंट पोजीशंस में कॉनकेव मिरर के हम इमेज को गेन कर सकते हैं. क्लियर? और उसके पहले के सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाले हैं. सो दोज हु हैवंट सीन बिफोर दे मे सी फ्रॉम देयर इटसेल्फ एंड you can understand each concept well. I have taught you from beginning, so there is no problem. Even though you have not studied physics, you can understand everything clearly. Now, chalo. You have a compass. I don't have compass. I cannot use compass. That's why I am using this thing. This is center. Similarly, I have made our concave mirror. So this is what become concave mirror. Center I have taken from somewhere. Let me see from where I have taken the center. Suppose this was the center. Somewhere center would be here like that. Okay, this is the center. Okay, exact middle of this mirror will be known as the pole. And I have told you in my previous lectures the line meeting to pole and center of curvature is called what? Principal axis. Half of the CP, half of the radius of curvature is known as a focus. समझ में आ गया? ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. क्या लर्न करना था? कुछ नहीं. इसका हाफ कर दिया, फोकस मिल गया. चलो हम शुरू करते हैं. पहली कंडीशन, when object is kept at infinity. In definition already I have told you, the rays coming from infinity, it goes from focus. तो यहाँ भी वही है बेटा. When object is kept of infinity, the image would be formed on focus, highly diminished. Clear? तो इसको बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. Clear? When object is kept at infinity, then image would be formed on focus, highly diminished. What is diminished? बहुत छोटी साइज का. Highly means बहुत छोटी साइज का. Just like a point. अब देखो, when object is kept beyond the center of curvature, एग्जाम में पूछता है बेटा कंडीशन, तो यहाँ लर्न नहीं करना है. अपने पास कंपास और pencil रहेगी. with the help of that we can make this image and find out everything what is required. Now see, if object is kept beyond the center of curvature, beyond the center of curvature means center curvature is beyond. image formation का रूल मैंने बताया था. आप दो ही रूल फॉलो करो, कोई इशू नहीं है. a rays will go parallel to the principal axis, after being reflected goes from focus. first rule clear. सेकेंड रूल, रे विल गो फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. जैसे जाएगी वैसे लौट आएगी. हैव यू सीन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हियर? व्हाट वी विल सी हियर? व्हाट वी विल सी हियर? वी विल गेट द इमेज हियर. वी विल गेट द इमेज हियर. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? क्लियर? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट था h1 हाइट का, तो इसकी हाइट h2 बहुत छोटी सी आई है. व्हाट इट शोज? व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा जाएगा,
तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कैसी हो गई बेटा? आई डैश उल्टी हो गई नीचे की ओर। तो आंसर क्या होगा बेटा? एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल बी डिमिनिश्ड, माने छोटी, स्मॉलर, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड इमेज जब होती है क्या होता है? ये मिरर के फ्रंट में बनती है और उल्टी बनती है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। फर्स्ट कंडीशन अंडरस्टूड। ऑन फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट था, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। अब देखो इमेज धीरे धीरे इधर आ रही है, घसक रही है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, इमेज कहाँ बनी? कहाँ बनी बेटा? बिटवीन सी एंड एफ। चलो अब दूसरी बात करते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं। इरेजिंग, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट ऑल्सो। Now see, this is C. Now when object is kept on center of curvature, अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ ले आया? बियॉन्ड रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाया। रूल क्या है बेटा? रेज विल गो एंड passes फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर एक रे यहाँ फोकस से जाए तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल भी हो जाएगी। इफ वन रे विल गो and it will become parallel also। जब पैरेलल होगी तो इमेज कहाँ बनेगी? हियर। क्लियर? रूल कई हैं, चाहे तो आप पोल से भी ले आ सकते हैं। इफ यू ब्रिंग अ वन रे फ्रॉम पोल देन ऑन सेम एंगल इट विल रिटर्न बैक, यहाँ बनेगा। ये भी रे बना सकते, बट टू रेज इज मोर देन इनफ टू मेक एनी इमेज। देखो बेटा, अगर ये h1 हाइट है, ये h2 हाइट, दोनों लगभग क्या हैं? सिमिलर हाइट के हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट विल केप्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई पूछता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होगा, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। इक्वल ऑब्जेक्ट, इक्वल एज अ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी उसी हाइट की बनेगी, बट रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल इन्वर्टेड तो हर बार बन रही है। हमने 3 कंडीशन पढ़ी, इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कौन पॉइंट बचेगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। चलो वो देख लेते हैं। इसीलिए कुछ भी लर्न नहीं करना है, कुछ भी किसी को लर्न नहीं करना है। क्लियर? ये बेटा आपका सी है, ये आपका एफ है। यहां ले गए, यहां ले गए, यहां ले गए, अब बीच में लाते हैं। अब देखना ध्यान से। Here ray will go parallel to the principal axis, after being reflected goes from focus. Clear? Understood? One more way है, अगर इसको ऐसे मिलाएं तो यहाँ कहाँ बनेगी? इसकी यहाँ बनेगी। वो तरीका अपना लें, या दूसरा क्या तरीका अपना सकते हैं बेटा? रेस अगर फोकस से जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये तरीका अपना ले। या अगर एक रेस पोल पे गिरी ऐसे, जिस एंगल पे गई थी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी? ये लौट जाएगी। हाँ भाई देखो क्या दिखा अब यहाँ, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं इमेज किधर भाग रही है? इस साइड भाग रही है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट की हाइट थी तो ये किसकी हाइट हो जाएगी? इमेज की हाइट हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट छोटा है, अब इमेज क्या हो गई? बड़ी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? When object is kept between center of curvature and focus, when object is kept between center of curvature and focus, then image will be real inverted larger than object। h1 से क्या है? ये h2 क्या है? लार्जर है। अभी तो छोटा बन रहा था, अब लार्जर हो गया। क्लियर? तो कुछ लर्न नहीं करना जाता है, बस आप बनाते जाएंगे, एवरीथिंग विल कम फॉर यू। ओके, अब बढ़ रहे हैं बेटा, सी और एफ के बीच आ गए। अब कहाँ भागेंगे? एफ की तरफ जाएंगे। देखो क्या होता है। ये सी है, ये एफ। अब ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रख दिया। बहुत मुसीबत। अब क्या होगा? व्हेन यू विल कीप एनीथिंग ऑन फोकस,
जब इमेज इन्फिनिटी पे थी, when image was kept on infinity, then object was kept on infinity, image was formed on focus. Similarly, when object will kept on focus, then image is also formed on infinity. कहाँ बनेगी नहीं मालूम, दोनों मिलेंगी ही नहीं. So image would be formed on infinity. बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा? छोटा बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा. सी और एफ के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा, बड़ा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, हर बार बनेगा. और फोकस पे रखेंगे तो क्या बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनती है. सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी. हाँ बेटा, अब एक स्पेशल केस आएगा जिसको आपको दिमाग पे रखना है. वन स्पेशल केस यू विल सी, टू विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड. वेरी स्पेशल केस इन कॉनकेव मिरर. इन ऑल केसेस इमेज वर रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड. भाई देखो, अभी तक इधर चल रहे थे, इधर चल, अब क्या यहाँ जाएंगे? एफ और पी के बीच. अब ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं. मेरा रूल देखना सभी लोग क्या होता है, कितना आसान है. रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड गोज फ्रॉम फोकस. क्लियर? अब दूसरी रे क्या आएगी बेटा? देखो, पोल पे जाएगी और उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. क्लियर? अब ये दोनों रेज इधर तो मिलने वाली नहीं, मिलेगी नहीं, बिकॉज दे आर वाइडन हियर. वी विल पुट इट बैक हियर, वी विल पुट इट बैक, वी विल पुट इट बैक. आर यू गेटिंग हियर डियर? दिस H1 will become H2 here. This is object here. We will get image. And how image? Erect. सीधी है, खड़ी है, मिरर के पीछे है, इसीलिए क्या है? वर्चुअल है. और सीधी है माने वर्चुअल है. In concave mirror you will get one condition where image would be virtual and erect. That is what? When object is kept between pole and focus. मैंने सारी केसेस बता दी, कुछ लर्न नहीं करना है. आप कंपास से और पेंसिल से बनाते जाएंगे, सब रिजल्ट अपने आप आता जाएगा. और कम से कम 2 रेज चाहिए इमेज फॉर्म करने. हर जगह 2 रेज लिया, हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, बट 2 रेज एटलीस्ट रिक्वायर्ड. Did you understand how the image formed in a concave mirror? अब एक बात सुन लो. Clear? You may take a screenshot of that. ये था concave mirror. Similarly हम एक इमेज बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर में. तो कॉन्वेक्स मिरर में बहुत कंडीशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है. कॉन्वेक्स मिरर में हर एक कंडीशन में, यहाँ तो एक कंडीशन थी यहाँ रियल इन्वर्टेड न मिल के वर्चुअल मिला था. But in convex mirror, in each case you will get only and only virtual and erect. How I will show? Suppose that this is a convex mirror. Outer side would be the reflecting surface, inner side is polished. अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा यहाँ है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि सर्कल इधर से बना है. हाफ क्या होगा? फोकस होगा. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ध्यान से देखना, अब रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ये. क्लियर? ऊपर जाएगा ये. यहाँ तो कहीं मिलना नहीं है. कहाँ लाएंगे इसको बेटा? पीछे मिलाएंगे फोकस से, बिकॉज फोकस की डेफिनेशन मैंने बताई थी. आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड आइदर मीट्स आर सीम्स टू मीट. यहाँ सीम्स टू मीट है. आर लुकिंग लाइक गोइंग फ्रॉम देयर, कि वर्चुअल है. दूसरी रेस क्या कहती थी? मैंने बताया था आपको. दूसरी कहाँ से जाती है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी. यहीं से जो इमेज जाएगी वो कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. हाँ भाई, कहाँ बना इमेज? यहाँ बना. 2 लाइन कहाँ मीट की? यहाँ मीट की. ये ए बी था, ऑब्जेक्ट था, जिसका इमेज कहाँ बना? ये बना. दिख रहा है बेटा आपको? ऑब्जेक्ट भी सीधा है, ये भी सीधा है. इसका मतलब क्या है? फ्रंट में तो बन नहीं रहा है मिरर, क्या बन रहा है? पीछे बन रहा है. कैसा इमेज होगा? गेस इट. वर्चुअल होगा. वर्चुअल कैसा होता है? हमेशा इरेक्ट होता है. और इन केस में हमेशा क्या बन रहा है? स्मॉलर बन रहा है. आपको हम लैब में भी समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे तो. सो
this is object, this is image. So in each case, in convex mirror, object is erect and virtual. Okay. In each case, कॉन्केव में तो केसेस अलग अलग थे, लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा कुछ नहीं है. साइन कन्वेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर से बता देता हूँ जिसको नहीं मालूम है, हालांकि आप पीछे के वीडियोस देख सकते हैं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा, चलो कुछ समझ लेते हैं, थोड़ा सा बस पीछे से आते हैं. ये पोल है बेटा, ये फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अगर यहाँ ऑब्जेक्ट था, चलो एक कंडीशन बना, फिर पहले इमेज ही बना लेते हैं. फोकस से जाएगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, यहीं पर मिलेगा. ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है. हमने बताया था डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से. देखना जरा, इस पोल से इस ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम लिखते हैं u से. याद रखना, सिंबल याद रखना, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u कहलाती है. दो इट इज मेजर्ड इन लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड की डिस्टेंस सारी किस में होती है, नेगेटिव में. पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को हमेशा याद रखना हम लोग v कहते हैं. व्हाट वी से, v. और ये भी लेफ्ट साइड है, तो ये भी क्या होगी, नेगेटिव होगी. पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, f कहते हैं. ये भी लेफ्ट साइड है, नेगेटिव होगा. अंडरस्टूड. और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को r बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी माइनस. जो भी इधर है लेफ्ट साइड वो माइनस है, जो भी उस साइड आएगा वो प्लस होगा. तो रियल इन्वर्टेड जब भी कॉन्केव मिरर से बनेगी, इसी साइड बनेगी, सब माइनस में आएगी. और जब भी वर्चुअल बनेगी, वो उस साइड बनेगी, वो v की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी. हाइट देखना सभी लोग, ऊपर जा रही है, h1 किस में होगा, पॉजिटिव होगा. इमेज की हाइट नीचे जा रही है, किस में होगी, नेगेटिव होगी. तो यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं मिरर फार्मूला. फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. फार्मूला याद रखना सभी लोग. आज मिरर खत्म करेंगे. 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. और इसमें इफ देयर इज अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव. क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है बेटा, ऐसे होता है. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है, फोकस भी इस साइड होता है. इधर की सारी डिस्टेंस किस मेजर करते हैं, पॉजिटिव में. और कॉन्केव है, अगर फोकल लेंथ किस साइड इसका है, इस साइड है, इसी कॉन्केव मिरर होगा तो फोकल लेंथ क्या लेंगे, नेगेटिव. ये दिमाग में बैठा लो, वैक्स पॉजिटिव, केव नेगेटिव लेंगे. और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वुड टेल यू, u इज नेवर पॉजिटिव. u हमेशा न्यूमेरिकल में हम माइनस ही रखेंगे. वाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट लेफ्ट साइड ऑफ अ मिरर. हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं. चाहे कॉन्केव के सामने रखें, चाहे कॉन्वेक्स के सामने रखें, दोनों बार किधर रखना है, लेफ्ट साइड ही रख रहे हैं. ओके, दिस मच अंडरस्टूड. So today's last topic I will teach you, that is called the magnification. मैग्नीफिकेशन माने इमेज कैसे बना, कितना गुना बना. तो याद रखना है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू h2/h1. मैग्नीफिकेशन इज नथिंग बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को हम मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर कहते हैं. इफ somebody will ask what is the definition of magnification, then what will you tell? The magnification is defined as a ratio of image of height of a image to the height of object. और इसको ऐसे लिखते हैं, m इक्वल टू h2/h1 सिमिलर इक्वल टू -v/u. ये फार्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा. v और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ क्या लिया, यहाँ दूसरे लैंग्वेज में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है,
वर्चुअल है, दोनों खड़ी, दोनों में सीधे सीधे है। अगर रियल इन्वर्टेड होगी तो एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स। इफ यू like this video, kindly share and subscribe it. One more thing I would like to tell you, right now we have studied only about mirrors. Next time when I will come, I'll teach you the concept of refraction. अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा, अभी सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा था, चाहे मिरर से, प्लेन मिरर से, कॉन्केव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से, सब कुछ रिफ्लेक्ट होकर अपनी हम इमेज देख रहे थे। अब क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। अब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में चलेगी, कैसे चलेगी नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। थैंक यू।